الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کورس کے اس سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 17 ہے۔ ہم نے تجوید القرآن کے پروگرام کے تحت ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاس تجوید کے امپورٹنٹ اور ضروری مخارج ہے ان کو جانا۔ ہم نے مخارج کے ساتھ ساتھ تجوید کے بہت سارے قوانین جانے، صفات ہم نے پڑھے، اور پچھلے درس سے ہم نے اب پریکٹس کلاس سے شروع لے لی، اور پچھلے درس میں بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ کو جانا، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، مخارج اور بہت سارے صفات کے بارے میں جانا۔ آج ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، یعنی تجوید القرآن درس نمبر 17 جو ہمارا ہے وہ آج بھی انشاءاللہ المستعان پچھلے لیکچر کی طرح ایک پریکٹس لیکچر ہوگا۔ آپ مائک اپنی آن رکھیں گے اور ہم ایک ایک کر کے ایک ایک آیت پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم مخارج وغیرہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے ہم سورۃ البقرہ، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے کوشش کی، اور ہم نے اس کے اندر جتنے بھی قواعد ہے، امپورٹنٹ مخارج ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو صفات ہے ان کو جانا، کیسے ادا کیا جاتا ہے، کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ جو ہے قرآن عظیم کا دوسرا سورت ہے۔ اس کا نام البقرہ، عربی میں البقرہ کہتے ہیں گائے کو یا گائے کے بچے کو، چونکہ اس قرآن مجید کے سورے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں ایک ذکر ہے، اور اس میں جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے، اور وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیوں ذبح کیا جاتا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کے اوپر جو البقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہی البقرہ، اسی سے اس سورت کا نام دیا گیا۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن عظیم کا سب سے بڑا سورہ ہے، تقریباً 2.5 پارے پہ یہ یعنی مشتمل ہے۔ پہلی پارت الف لام میم، پھر دوسری پارہ سیقول، اور تیسری پارہ جو ہے تلک الرسل، اس کا ہاف سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کے کافی زیادہ فضائل ہے، خصوصاً ان کے جو ابتدائی آیات اور اختتامی آیات جو ہے، یعنی آخری رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا، اس کی کافی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ مدنی سورہ کہتے ہیں ایسے سورہ کو جس کا شان نزول، یعنی جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی سورت ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو بھی سورت آپ پر نازل ہوئی اس سورے کو سورہ مکی سورہ کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مکی سورہ ہے، جبکہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ اب ہم اس کو اوپن کریں گے، اس کو پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آپ اپنی مائک آن رکھیں گے، سب سے پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے اس کے قواعد جانیں گے، ٹھیک ہے؟ منیر صاحب، شاہ رخ، آپ بھی اپنی مائک کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. الف لام میم، ألف لام لام ميم. شوکت صاحب آپ الگ سے اس کو پڑھیں۔ ألف لام ميم. لام کو پہلے میم کے ساتھ ملائیے۔
लाम, उसके बाद मीम, फिर से पढ़े। अलिफ लाम मीम। मुनीर साहब आप इसको पढ़े। अलिफ लाम मीम। शाहरुख आप पढ़े। अलिफ लाम मीम। शाबाश। ये जो अलिफ लाम मीम जो 3 हरूफ है, इनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। कुरान अज़ीम के इन यानी ऐसे जो हमारे पास हरूफ आते हैं, बहुत जगह पे है ये, इन हरूफ को हम हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ जो जिनका जो तर्जुमा है, जिनका जो मतलब है वो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। इनके बारे में अक्सर उलमा की यही राय है कि इसका जो तर्जुमा है, इसका जो माने है, इसका जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के साथ में। कुरान मजीद में 2 तरह की आयत है, आयत जिनको हम कहते हैं मुतशाबिहात और मुहकमात। मुहकमात ऐसे आयत है जिनका पढ़ना, जानना, समझना, जिन पे तिलावत करना, जिन पे ईमान रखना और जिन पे अमल करना फ़र्ज है। मुतशाबिहात ऐसे आयत है जिनका पढ़ना ज़रूरी है, ईमान रखना ज़रूरी है, बट तर्जुमे के पीछे नहीं जाना। उन मुतशाबिहात आयात में ये अलिफ लाम मीम भी है। हालांकि तफसीर इब्न कसीर में और भी मुख्तलिफ तफासिर में इसके डिटेल्स आए हैं कि ये अलिफ लाम मीम या हामीम, इसी तरह तौहा, ये हरूफ मुक़त्तआत इब्तिदा में क्यों आए हैं। बहुत सारे वजूहात है। एक वजह ये भी है कि कुरान अज़ीम जो है ये जब इब्तिदा किया जाता था, अरबों में दस्तूर था किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले कुछ वो ख़ास अल्फाज या कुछ खास हरूफ को बताया करते थे। मगर उलमा की जो अक्सर राय है वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला के पास इसका इल्म है और असल मानी जो है वो अल्लाह ही जानता है। इस तमहीद के बाद अगर हम तजवीद के हिसाब से देखें, जो ये लाम और मीम पर दोनों मदें हैं ना, ये कौन सी मद है? आप में से कोई बता सकता है? ये मद असली है या मद फरई है? पहले तो ये आप जानें। मद फरी। फरी। ये मद फरई है क्योंकि आपको पता है कि हरफ मद के बाद जब सबब होगा तो उसको हम मद असली नहीं कहेंगे। दूसरा इंडिकेशन, मद असली जो है उसको लिखा नहीं जाता है, तो ये लिखी हुई है, दिखाई गई है, इनको सिंबलाइज किया गया है, तो ये मद फरई है। अब मद फरई की आपको पता है 4 किस्में हैं। एक है मद मुत्तसिल, एक है मद मुनफसिल, एक है मद आरिज वक्फी और एक है मद लाजिम। आपको क्या लग रहा है कौन सी मद यहाँ पर है? मद मुत्तसिल। ये मद लाजिम है। ठीक है, याद रखिएगा, हरूफ मुक़त्तआत पर जब भी कोई मद आप देखेंगे वो मद लाजिम कहलाता है। ठीक है, मद लाजिम। और इस तरह भी आप जानेंगे कि हर्फ मद के बाद सबब मद अगर तशदीद की शक्ल में होगा या सुकून की शक्ल में होगा, ऐसी मद को हम कहते हैं मद लाजिम। लाम जो है, ये लाम, अगर हम लाम को खोलेंगे हम लिखेंगे लाम अलिफ और मीम। इसको मैं ऐसे आपके सामने लिखूंगा, आपके सामने सवाल पैदा हो सकता है, ये लाम जो है इस पे कौन सा हर्फ मद सब। देखिए, अगर हम लाम को लिखेंगे वो ऐसे लिखा जाएगा, लाम अलिफ और मीम, और मीम जो है इस पे सुकून होगा, तभी तो ये लाम पढ़ा जाएगा ना। अगर हम लाम को खोल के लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, है कि नहीं? तो हर्फ मद यहाँ पर अलिफ है, ये यहाँ पर हर्फ मद है, और सबब मद जो इसका है अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इसका सबब मद ये हमजा है। और ये जो हमजा है ना, ये मुस्तकिल है, ये टेम्पररी नहीं है, इसीलिए तो इसको लाम पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं बात? इसीलिए ये मद जो है ये मद लाजिम है। हर्फ मद के बाद सबब जो है वो सुकून है, जज्म है, मगर वो जज्म जो है परमानेंट जज्म है। अगर ये टेम्पररी जज्म होता तब ये मद वक्फी होता या मद आरिज होता, मगर ये मद आरिज नहीं, मद लाजिम। इसी तरह अगर हम मीम को पढ़ेंगे तो मीम ऐसे पढ़ा जाता है, मीम या और मीम। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे मीम के नीचे जेर, या साकिन, या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा, और मीम फिर से साकिन है, इसीलिए तो मीम पढ़ा जाएगा। तो इस पे भी जो मद है ये भी मद लाजिम है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी आप मद देखेंगे हरूफ मुक़त्तआत पर, उस मद को हम मद लाजिम कहेंगे। और मद लाजिम को लंबा करना, कितना लंबा करना है? 6 से 8 अलिफ तक, यानी बहुत लंबा।
جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی آپ کے اندر سانس ہے. اور ایسے آپ دیکھیں گے کوئی بھی قاری اس کو پڑھتا ہے تو لمبا پڑھتا ہے. الف لام. پھر لام کو میم کے ساتھ ملانا، کیونکہ میم میں تشدید ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. غنے کا کیا مطلب ہے شوکت صاحب؟ غنہ. غنہ کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کس کو کہیں گے؟ یہ اس کی سپیلنگ یہ ہے، غاف نون اور ہا. غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ جی سر، ناک میں آواز ناک کو کے لینا ہے. بانسے میں. بالکل، غنہ کہتے ہیں ناک کے بانسے میں یا ناک کے اندر نیسل کیوٹی میں آواز کو لے جانا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام، کیونکہ میم پہ تشدید ہے نا، اور اس کے بعد میم. اور یہ جو آخر میم ہے نا، اس میں کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ اس میں مد عارض کیوں نہیں آ سکتی. اس وجہ سے کیونکہ یہ میم کے اوپر اپنی یہ جو ہے اوریجنل اس کا اپنا سکون ہے، اسی لیے اس پہ بھی مد لازم. ٹھیک ہے. اب منیر صاحب ذرا الف لام میم کو پھر سے پڑھیے. الف لام میم. بہترین. اب جب میں پڑھوں گا نا، میں جس کو بتاؤں گا وہی پڑھے گا. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شاہ رخ آپ پڑھیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شاباش. شوکت صاحب آپ پڑھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور منیر صاحب آپ پڑھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شاباش. اب اس میں ایک بات ہے منیر صاحب، آپ نے صحیح پڑھا. اور شوکت صاحب آپ فا پہ مشق کریں، کیونکہ آپ فی ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. فا کو پڑھتے وقت اوپر کے ہونٹ استعمال نہ کریں، فی پڑھے. ٹھیک ہے. اب ایک ایک کر کے پڑھیں گے. سب سے پہلے ذالکا، اور ذال کا مخرج کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ذال کیسے ادا ہوتا ہے؟ ذال ادا ہوتا ہے جب زبان کی نوک، دیکھیں نوکی لسان، اس کو اوپر والے جو دانت ہے نا، ثنایا الیا، اس کے جڑ سے. کنارے کے ساتھ نا، جڑ نہیں، کنارہ. جڑ نہیں، جڑ تو ہوتا ہے جو مسوڑوں کے ساتھ. کنارہ اوپر والا جو ہے نا نوکیلے حصے، ذالک، تبھی تو یہ نرم ہوگا. آپ حرف کو مخرج سے ادا کریں، وہ خود بخود نرم ہوگا. ذالک کیسے پڑھیں گے؟ ذالک. یہ خود بخود ہوگا. آپ مخرج سے ادا کریں گے نا، ذال خود بخود نرم ہوگا. یہ اپوزٹ ہے زا کا. زا جس کو اردو میں زے پڑھتے ہیں، زے، وہ تیز پڑھا جاتا ہے. اس میں اور اس میں آواز سیم ہے، مگر فرق کس کی ہے؟ لال کو نرم پڑھتے ہیں، زا کو تیز پڑھتے ہیں. ذالک، ذالک، انہیں ذالک کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، مگر یہاں جو ترجمہ لکھا جاتا ہے وہ یہ کیوں لکھا جاتا ہے، اس کو ہم گرامر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ذالک میں جو یہ الف ہے نا، الف دال کے ساتھ جو الف ہے، اس پہ کوئی مد ہوگی یا ایسے ہی پڑھا جائے گا؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر جو ہے نا، اس پہ کوئی مد ہوگی یا نہیں؟ مد مد کو عارضی. اس میں مد جو عارضی نہیں، اس کو کہتے ہیں مد اصلی. عارضی نہیں، عارضی تو مد فرعی کی قسم ہے. ذالک، دیکھیں الف جو ہے نا، یا کھڑا الف جو ہے، یا الف جس کو ہم کہیں گے، یہ حرف مد ہے. اگر صرف آپ حرف مد دیکھیں گے، اس کے بعد سبب مد نہ ہو، تو ایسے مد کو ہم کہتے ہیں مد اصلی، پرماننٹ مد، اصلی مد. اور اس کو دو الف کے برابر ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں ذالک. ذالک ایک الف کے برابر لمبا کرنا، لمبا زیادہ نہیں کرنا، بس اتنا. ذالک. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے شاہ رخ؟ ذالک. ذالک. ٹھیک ہے. ذالک. اب کیف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. جو بیچ میں اب الف دیکھ رہے ہیں نا، یہ الکتابوں کا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کیا بولتے ہیں؟ حمزۃ الوصل. یاد رکھیے گا، جب پچھلا حرف آگے والے حرف سے ملتا ہے نا، تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے. یہ آپ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا. ذالک الکتاب، یہ تا کے ساتھ جو کھڑا الف ہے نا، اس پہ بھی مد اصلی ہوگی. دیکھیں مد اصلی جو ہے یہ عام ہے. مد اصلی بہت عام ہے، یہ اکثر و بیشتر مد اصلی ہوتی ہے. مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے حرف مد ہے، بٹ اس کے بعد کوئی سبب اویلیبل نہیں ہے، حمزہ یا سکون نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے لام کے ساتھ جو الف ہے، اس پہ بھی مد اصلی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا ریب.
را को पुर पढ़ेंगे या बारीक? जी मुनीर साहब। पूर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे पुर? कोई जवाब इसका? ये यरमलून नहीं, ना ना ना, यरमलून से तो ताल्लुक ही नहीं है। वो तो 7 हरूफ अलग है। वो है साद, दाद, ता, वा, गैन, खा, काफ। ये 7 हरूफ, उसमें यरमलून से कोई ताल्लुक नहीं है। रा पुर पढ़ा जाता है जब इस पर जबर या पेश हो। बिल्कुल ये जबर। ये अलग है। रा और अल्लाह का लाम, जिसको लामी जलाला कहते हैं, उनके अलग कंडीशन है। बाकी जो 7 हरूफ वो तो हमेशा ही होंगे। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने आपको रा का क्यों बताया? अलिफ लाम से लेके ला रैबा तक मैं सिर्फ रा के बारे में पूछ रहा हूँ। वजह ये है, बाकी जितने हरूफ है वो सब बारीक हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आपको हमें डिफरेंशिएट करना होता है ना, हम उसको बताएंगे जो कम होता है। बाकी जो है वो तो होता ही है। तो बाकी जितने हरूफ है वो बारीक पढ़े जाएंगे, सिर्फ रा को पुर पढ़ा जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? रैब, रैब कैसे पढ़ेंगे? राइब। हाँ, रैबा नहीं, रैब। ला, देखिए ला, अब ला नहीं पढ़ेंगे, ला बारीक है। ला रैब कैसे? ला राइब। हाँ, ऐसे फर्क होना चाहिए। पुर और बारीक हरूफ में फर्क होना चाहिए जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, रैबा में बताइए, या साकिन माकबल जबर। आप बताइए या क्या है? साकिन। या तो साकिन है माकबल जबर। कौन सा कायदा है? या साकिन माकबल जबर, ये मदा है या और कुछ है? शौकत साहब, मदा नहीं है। मदा तो नहीं मदा है। है। नहीं, या साकिन माकबल जेर होता तब मदा है। ये तो अब या मदा है। साकिन माकबल जबर है ना। यालीन यालीन है, लीन यालीन है, है। वेरी गुड। वाव साकिन माकबल जबर, या साकिन माकबल जबर, तो लीन। लीन का मतलब होता है मलाइम। देखिए, हम पढ़ते हैं रैबा, उर्दू में पढ़ेंगे रैबा। पढ़ते हैं ना उर्दू में रैब, ला रैबा। रैबा नहीं पढ़े, रई, क्योंकि इसको मलाइम पढ़ना है। जैसे एक यानी जो वेव की तरह इसको पढ़ना है। ला रैबा, ला रैबा नहीं है, रैबा नहीं है, रैबा, क्योंकि ये लीन है। लीन को कहते हैं नरम कर। ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने आपको आखिर में पढ़ाया था, जिसको हम कहते हैं रमूज औकाफ, यानी वक्फ की जगहें। उनमें से एक रमूज औकाफ आपके सामने आप देख रहे हैं। रैबा के ऊपर 3 नुक्ते हैं और फीही के ऊपर 3 नुक्ते हैं, है ना। जिस तरह ये जो नुक्ते हैं ना, हमेशा ये 2 तरह से हो सकते हैं। यानी जब भी आप ये नुक्ते कुरान मजीद में देखेंगे 3-3 नुक्ते, याद रखिएगा कि ये 3 नुक्ते हमेशा 2 बार आएंगे। इस वक्फ को कहते हैं मुआनिका। यहाँ लिखा होता है, क्योंकि ये कुरान मजीद में ज्यादा जगहों पे नहीं है, तो अक्सर जब हम कुरान खोलेंगे ना, साइड में लिखा होता है मुआनिका। मुआनिका का मतलब होता है आपको एक जगह ठहरना है और दूसरी जगह नहीं ठहरना। ठीक है। बल्कि कभी कभी लिखा जाता है, मुआनिका किसको कहते हैं हम आम जबान में, उर्दू जबान में मुआनिका किसको कहते हैं? गले मिलना। गले मिलना, वेरी गुड। मुआयनिका कहते हैं ना, गले मिलना सुन्नत है मुआयनिका। तो मुआयनिका करना सुन्नत है। मुआयनिका का मतलब होता है एक तरह से मिलाना, यानी दोनों में से एक जगह मिलाना है और एक जगह ठहरना है। अब कभी कभी लिखा भी होता है कहाँ आपको मुआयनिका करना बेहतर है। यहाँ पर लिखा होता है इंदल मुताखिरीन मुतकद्दिमीन, पहले आप करें या बाद में करें। हालांकि चॉइस है आपकी, मगर आपको याद रखना पड़ेगा मुआयनिका में एक जगह ठहरना, दूसरी जगह नहीं ठहरना। इसीलिए हमने पढ़ा ला रैबा, यानी यहाँ हम पहली दफा नहीं ठहरे, अदरवाइज हम रैब पढ़ते। और दूसरी जगह हमने पढ़ा फी, दूसरी जगह हम ठहर गए। अगर मान लीजिए आप पढ़ेंगे ला रैब, ठहरेंगे मिसाल के तौर पर, तो आपको फी ही पे नहीं ठहरना, क्योंकि दोनों पे एक ही जगह आप ठहर सकते हैं। इस खास कंडीशन को, इस खास वक्त को कहते हैं वक्फे मुआनिका या मुआनिका कहते हैं। ठीक है। अब ला रैबा पे हमने नहीं वक्फ किया, हमने ला रैबा पढ़ा। फी जब हमने वक्फ किया तो वक्फ की सूरत में क्या 2 चीजें करते हैं शौकत साहब? जी सर। वक्फ जब हम कहेंगे ना, वक्फ, वक्फ का क्या मतलब होता है तजवीद में?
सांस को ठहरना, यानी सांस छोड़ना। को आपको छोड़ना, तोड़ना, जो आप सांस ले रहे उसको छोड़ना, और आखिरी हरफ को क्या बनाना, साकिन। अक्सर और बेशतर आखिरी हरफ को हम साकिन बनाते हैं। कुछ खास कंडीशन है, जैसे दो जबर साकिन नहीं बनता, एक अलिफ बनता है और एक जबर रहती है, और अगर गोलता है वो गोल तब्दील हो जाता है। मगर आम सूरतों में आप देखेंगे वक्त की सूरत में एक तो हम सांस को तोड़ते हैं और आखिरी हरफ को साकिन बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर फी ही के बजाय पढ़ा जाएगा फी। और वक्त की सूरत में ये जो आखिर हर्फ है ना, इस पे सुकून आएगा, जज्म आएगा। तो आप मुझे बताइए या पे कौन सी मद आई? जी मुनीर साहब। मद असली। यही मद असली तब थी जब फी ही पढ़ते, क्योंकि हरफी मद होता सब मद नहीं है। मगर अब यहाँ पर हरफी मद के बाद सब भी मद भी आया ना वक्त की हालत में, तो इस मद को क्या कहेंगे? मद आरिज। मद आरिज, बेहतरीन। मद आरिज वक्फी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आरजी तौर पे हमने सुकून लाया। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, मैं बार बार इसको दोहराता हूं ताकि आपके ज़बान ज़द आम हो जाए। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे किसी को सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है खुद भी पढ़े और उनको भी सिखाए। ठीक है, और ज्यादा मैंने पिछले जैसे दर्स में भी बताया था, किसी कारी को आप लेके अब कुरान मजीद को खोल के उसकी क़रत सुने, खुसूसन वो कारी जो ठहरे ठहरे पढ़े। जैसे कारी अब्दुल बासित है, कारी अब्दुल बासित की क़रत बहुत ठहर ठहर के है। उनकी क़रत अगर आप सुनेंगे, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की, बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अगर उनकी क़रत आप सुनेंगे ना कुरान मजीद खोल के, अब आपको क्लियर हो जाएगा वो लंबा क्यों करते हैं, ठहरते क्यों हैं, यहाँ पर उन्होंने यानी पुर क्यों पढ़ा, इसको ऐसे क्यों किया। तो अब ये क्लियर हो जाएगा। आप अब शेड्यूल बनाएं, हफ्ते में या हर दिन, हफ्ते में तो नहीं, हर हफ्ते में तो हर दिन आपका होना चाहिए, हर दिन कम से कम 10-15 मिनट किसी कारी को सुने, बट कुरान मजीद खोल के। अब आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपकी इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट क्या होगी। इसके बाद है, आप भी पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, हुदल लिल मुत्तकीन। शाहरुख पढ़े। हुदल लिल मुत्तकीन। बेहतरीन। मुनीर साहब आप पढ़ें। हुदल लिल मुत्तकीन। खौफ से, मुत्तकीन। मुत्तकीन। खौफ, खौफ को पूरा पढ़ा जाता है। जी शौकत साहब। हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, आम गलती जो यहाँ पर है ना वो ये होती है, लोग पढ़ते हैं हुदल, दाल को 2 बार पढ़ते हैं, ये गलत है। जैसे मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, हुदल। हुदल सही है, ठीक है। आप बताइए, 2 जबर के बाद लाम आ रहा है, मुनीर साहब बता सकते हैं कौन सा कायदा है ये? शौकत साहब आप बता सकते हैं। 2 जबर को हमने लाम के साथ मिलाया, मिलाने को क्या कहते हैं? जी जी, इदगाम कर। इदगाम करते हैं, इदगाम। बिल्कुल, ये इदगाम हमने इदगाम। किया। ये चूंकि 2 जबर का इदगाम है, अब 2 जबर या 2 जेर या 2 पेश या नून इदगाम साकिन के इदगाम के 2 किस्म है, इदगाम बगुन्ना बागुना, और इदगाम बिला इदगाम गुन्ना। बागुना ही, इदगाम बागुन्ना बागुना ही। और दूसरा है बिला गुन्ना। अब आपको ये लग रहा है कि बागुन्ना है या बिला गुन्ना है? बागुन्ना होता है बागुना ही। गुन्ने के साथ, बिला बा- गुन्ना होता है गुन्ने के बगैर, और गुन्ना आपको बिला पता है गुन्ना। नाक में आवाज ले जाना। तो बिला क्या है गुन्ना। यहाँ पर? इदगाम बिला बिला गुन्ना, गुना ही। है ना। बिला देखिए, गुन्ना। बिला गुना। हमने हमने नील। पढ़ा हुदल, नून तो है ही नहीं, जैसे जैसे हमने बिल्कुल जी। नून को खत्म कर लिया। और इदगाम बिला गुन्ना तब होता है जब 2 जेर 2 जबर 2 पेश और नून साकिन के बाद रा या लाम आ जाए, जैसे आपने पढ़ा है हुदल लिल मुत्तकीन। कॉफ को पूर पढ़िएगा, अगर जेर है, कीन पढ़ेंगे, कीन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसी साउंड में हमारे पास कैफ भी है। कैफ और कॉफ में फर्क करना है। शाहरुख आपने सही पढ़ा, जरा इसको आप फिर से पढ़ें। हुदल लिल मुत्तकीन। कीन, बेहतरीन। अच्छा ये बताएं, या पे कौन सी मद आएगी, क्योंकि नून तो हम साकिन बनाएंगे आखिर में, या पे कौन सी मद आएगी? जी, मदे आरिज। आरिज, मद आरिज, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पर आपकी चॉइस है, क्योंकि आयत के ऊपर ला है, वक्फी ममनू है, आपके पास चॉइस है, यहाँ आप ठहरे या यहाँ पर आप दूसरे हर्फ के साथ, लफ्ज के साथ इसको मिलाएं।
अगर आप ठहरेंगे उस सूरत में यहाँ पर मद आरिज आएगी, लंबा करेंगे। अगर आप मान लीजिए नहीं ठहरे, आप चाहते हैं आपका सांस है आप आगे बढ़े, तो उस वक्त मुत्तकीनल्लज़ीना पढ़ेंगे, उस वक्त मद आरिज नहीं आएगी, क्योंकि नून को हमने लाम के साथ मिलाया और जो बीच वाला अलिफ है ना, इसको हमजतुल वसल कहते हैं, गिर जाता है। मिलाने की सूरत में ये हमजतुल वसल गिर जाता है। और मान लीजिए अगर आपने लिल मुत्तकीन पढ़ा, आपने वक्फ किया, तो इस हमजतुल वसल पे आरजी जबर आएगी, इसको पढ़ेंगे अल्लज़ीना। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। शारुख की साथ को पढ़े आप। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. अच्छा, अब देखें यहाँ पर चूंकि आपकी सांस बरकरार नहीं रुकी बराबर युनफिकून तक, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप अगर रज़क़नाहुम पे आपने वक्फ किया ना, तो दूसरी सांस में इस रज़क़नाहुम को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई वक्फ की अलामत नहीं है ना। अगर मान लीजिए बीच में आपने वक्फ किया, तो उस लफ्ज को फिर से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये आप कायदा याद रखिएगा। शौकत साहब, आप इसको पढ़े दूसरी आयत को। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما वयुकीमून, सौद को तेज पढ़े, सलाता। जी, ويقيمون الصلاة सौद को ومما तेज पढ़े, सौद नरम नहीं होता। सलाता पढ़ रहे, सलाता पढ़े, सलाता। जबान की नोक को नीचे वाला जो दांत है ना, उसके अंदर से मिलाइए जड़ के साथ, सलाता। दांतों को मिलाइए, सलात। पढ़िए। ويقيمون الصلاة ومما आप सौद सही नहीं पढ़ रहे, आप जरा शारुख बताएं कैसे पढ़ेंगे। वयुकीमूनस, ويقيمون الصلاة ومما बस बस, सलात, सलात, आवाज मेरी समझे ना, सला, क्योंकि सौद पे सिफत सफीर हो जाती है। सफीर का मतलब होता है तेज आवाज निकालना। जी, फिर से पढ़े। ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. फा पे बड़ा मसला है शौकत साहब आपके साथ, फा आप अदा नहीं कर रहे हैं। मुनीर साहब आप पढ़े इस पूरी आयत को। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. कोशिश आपने की, बट सांस अगर ठहर भी जाए बीच में, कोई गुनाह नहीं, उसको पढ़ सकते। अब इसमें कायदे क्या है? अल्लज़ीना, आपने समझ लिया कि अल्लज़ीना, मैंने अलिफ पे ऊपर जबर कहाँ से लाई, हमजतुल वसल, इसको मैंने बताया। अल्लज़ीना, दाल को नरम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। इस या के ऊपर मद असली है, क्योंकि हरफी मद के बाद सबब बंद नहीं है। और याद रखिएगा, जब भी आप हमजा पर जज्म देखेंगे ना, इस पे झटका होता है। झटका का मतलब आवाज को ठहरना है। जैसे यू मीनून, यू अलग है और मीनूना ए अलग है, इसको झटका कहते हैं। आवाज को थोड़ी देर के लिए रोकना और आगे बढ़ना। अल्लज़ीना युमिनूना, फिर उसके बाद है बिल गैबी, या साकिन माकबल जबर या लीन। गैब नहीं है ये गैब है, गैबी। गैब हम उर्दू में कहते हैं ना, गैब पे ईमान लाना। ये अरबी में गैब नहीं, गैब है, गैबी। इसको फर्क जानिए। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कौम, ऐसे कौम है, असल में अरबी में कौम है, कौम नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं लीन। उर्दू में हम फर्क नहीं जानते, अरबी में काफी फर्क जानना है। उसके बाद वयुकीमून सलात, कॉफ पुर पढ़ा जाएगा, हालांकि जेर है मगर ये हुरूफ मुस्तालिया में है। गईन को भी पुर पढ़ा जाएगा, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में है। बाकी सब हुरूफ बारीक। और युकीमू, दोनों जगह या साकिन माकबल जेर, वाव साकिन माकबल पेश, दोनों जगह मद असली है। उसके बाद नस्सलात, हमजतुल वसल गिर गया अस्सलाता का, सौद को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हुरूफ मुस्तालिया में है।
सलाता ये खड़ी जबर या अलिफ, इस पे भी मद असली। व मिम्मा मीम पे गुन्ना होगा क्योंकि मीम मुशद्दद है, मीम के साथ जो अलिफ है इस पे मद असली। और रज़क़नाहुम, अब बताइए रा पुर पढ़ा जाएगा या बारीक? पुर क्यों? जबर है। रा पे जबर है क्योंकि रा हुरूफ मुस्तालिया नहीं मगर इस पे जबर है। और रज़क़ जा तेज पढ़िएगा। और कॉफ पे क्या होगा? कॉफ साकिन है, कोई बता सकता है? अलकला। 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 रज़क़नाहुम, रज़क़ नहीं, रज़क़नाहुम। मीम साकिन के बाद या आ रहा है, मीम का कौन सा कायदा है? मीम साकिन के बाद या, मीम के कायदे याद रखना बहुत आसान है। मीम साकिन के बाद बा इख्फा, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम, और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आए तो इजहार। इजहार कहते हैं इसको, इजहार शफवी, क्योंकि मीम होंठों से अदा होता है तो इसका नाम देते हैं शफवी। और रज़क़नाहुम, उसके बाद युनफिकूना नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है युनफिकून। इस नून साकिन के बाद फा आ रहा है, इसको कहते हैं इख्फा। इख्फा, नून की आवाज को छुपाना है। युनफिकून, सही। और कॉफ को पुर पढ़ेंगे, और अगर हम यहाँ ठहरेंगे वक्त करेंगे तो इस पे टेम्पररी सुकून आएगा, इस पे मद आएगी, वाव साकिन माकबल पेश है, इसको मदे आरिज कहेंगे, मद आरिज वक्फी, ठीक है। अगर आप नहीं ठहरेंगे तो मद असली, क्योंकि फिर पढ़ा जाएगा युनफिकूना, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। शाहरुख साहब आप पढ़ें इसको वल्लज़ीना से। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك शाबाश, आगे बढ़े, पूरी आयत पढ़े ना। وبالآخرة هم يوقنون शाबाश, मुनीर साहब आप इस आयत को पढ़े। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل उनजिला नहीं, जैसे मैंने وما पढ़ा था ना, उनजिल, फिर आखिर आप साकिन करें, फिर दूसरे सांस में वमा उनजिला पढ़ेंगे जी। وما أنزل من قبلك काबलिक, من قبلك शाबाश। وبالآخرة هم यू, يوقنون क्योंकि यहाँ कोई हमजा नहीं है ना, और मिन काबलिक, ठहरे आप, क्योंकि इतनी सांस तो लंबी नहीं होगी ना, तो मिन काबलिक। आप मुनीर, आप शौकत साहब आप इसको पढ़े वल्लज़ीना से। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक काबे नहीं, कौफ से काबलिक, मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम युक़िनून। खी नहीं, खी, खा को पुर पढ़ा जाता है। खैर, कायदे क्या है? वल्लदीना, अल्लदीना बहुत दफा आया, आपने ऊपर भी देखा, जाल को नरम पढ़िएगा, या पे मद असली, युमिनूना ऊपर की तरह, हमजा पे झटका, और बिमा उन्जिला। अब मुझे बताइए जो मद यहाँ पर है ना, ये कौन सी मद है? आप में से कोई बता सकता है? ये तो क्लियर है कि मद फारई है, मद फारई की कौन सी किस्म है? इसको कहते हैं मद मुनफसिल, इनमें फासला है। हरफी मद जो है बीमा का अलिफ है, और सबबी मद जो है जिला का हमजा है, बशकल अलिफ, क्योंकि अलिफ पर जबर जेर पेश होता है, वो अलिफ नहीं हमजा कहलाता है। तो हरफी मद के बाद सबबी मद अगर दूसरे कलमे में आता है, ऐसे मद फरी की किस्म को मद मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब जिसमें फासला हो, हरफी मद और सब मद लंबा करना होता है, जल्दी नहीं करना। बिमा जिला, जिला नून साकिन के बाद जा, तो नून साकिन पर इख्फा होगा,
जा को तेज पढ़िएगा, जी, ये दाल नहीं है, दाल नरम है। इलाई का या साकिन माकबल जबर, तो या लीन है, इले का नहीं है, इलाई का। इसी तरह वमा जिला, बराबर यही, जैसे बीमा है ना, वैसे ही वमा मद मुनफसिल, इख्फा, जिला, जा को तेज पढ़िएगा। सीन, जा और सौद, ये तीन ऐसे हुरूफ है जिनको तेज पढ़ा जाता है। तेज पढ़ने की सिफत को कहते हैं सिफत सफीर, तेज पढ़ना। उसके बाद क़ब्लिक, नून साकिन के बाद क़ाफ इख्फा। देखिए नून साकिन के ज्यादातर जो कायदे हैं ना वो इख्फा हो जाते हैं। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, और यहाँ पर है क़ब, क़ब बा साकिन कलकला, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। अगर यहाँ ठहरेंगे क्योंकि जीम है वक्फी जायज, बेहतर है ठहरना क्योंकि इतनी लंबी सांस तो होती नहीं, तो आप पढ़े क़ब्लिक, कैफ को साकिन बनाएंगे, बा पे कलकला करेंगे। वक्फी जायज का मतलब होता है आपके पास इजाजत है, आप ठहरे या आगे बढ़े। बट मैंने आपको पहले अर्ज किया वल्लदीना से पढ़ना है तजवीज के साथ, बीच में मद भी है, बेहतर है कि आप ठहरे। उसके बाद व बिल आखिरती, खा अगर चीज जेर के साथ है पुर पढ़ा जाता है। क्यों? हमेशा पुर होता है, यह हरूफ मुस्तालिया में है। 7 हरूफ साद, दाद, ता, वा, गैन, खा, क़ाफ हमेशा पुर होते हैं, चाहे जबर हो जेर हो। बिल आखिरती, रा भी पुर पढ़ा जाएगा, इस पे जबर है, ये हरूफ मुस्तालिया नहीं मगर जबर है। हुम, मीम साकिन के बाद या आ रहा है तो मीम पे इजहार होगा, ठीक है, क्योंकि मीम के कायदे याद आसान रखना है। मीम साकिन के बाद मीम इदगाम, मीम साकिन के बाद बा इख्फा, और बा और मीम के अलावा जितने भी आते हैं मीम साकिन के बाद तो उस वक्त इजहार होता है। यहाँ पर यूक़िनून है, यूक़िनून, युक़िनून नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाव साकिन माकबल पेश, वाव मद्दा है, और यहाँ तो हमारे पास हमजा है नहीं, झटका नहीं करेंगे। यूक़िनून, क़ाफ से, किनून नहीं, कैफ नहीं, क़ाफ है। यूक़िनून, क़ी क़ी क़ी, यूक़िनून, और यहाँ पर आखिर में वक्फ करेंगे, वक्फ की सूरत में हमजा आएगा या, और यहाँ पर मद्दे आरिज वक्फी आए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई सवाल? और जिस तरह हम पढ़ रहे हैं ये आपको सही लग रहा है? इसको हम कंटिन्यू करें 2-3 हफ्ते या इस पे हम वक्फ करें? आपका मशवरा क्या है? नहीं, कंटिन्यू करेंगे, मुनीर साहब, कमजोरी। कंटिन्यू शाहरुख करेंगे। जी। अब इसको क्या है, क्योंकि हमारा दूसरा कोर्स भी होगा, मुझे लग रहा है 1-2 लेक्चर्स और इस पे देंगे, 20 तक बराबर करेंगे, ताकि कुछ लेक्चर्स जो है हमारे प्रैक्टिस के होने चाहिए। उसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कि हमारे लिए सफ़र को आसान बनाए। इस तरह हमारा आज का दर्स इख्तिताम हुआ चाहता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस कोशिश को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, वालेकुम सलाम।